और अब दोबारा मुदमा प्रिंसिपल साहिबा से अर्ज करूंगी कि वो मेहमानों का खैर मकदम करें। Our chief guest for today's function, Honorable Mrs. Sabiha Nimisha ma'am, our guest of honor Mrs. Rizwana ma'am, Professor Tariq Sahab, Azam Sahab, media person, teaching staff, other dignitaries, my dear student colleagues, ladies and gentlemen. A hearty welcome to all of you and warm greeting on my behalf and on behalf of the staff and students of AMU Girls School. I consider it an honor and a great privilege to especially welcome our chief guest, Mrs. Sabiha Nimisha, to this historical portal of learning. Ma'am, the work done by you in social era is really praiseworthy. Your concern for the education of the daughters of the community is greatly respected. I take this opportunity to profound welcome our guest of honor, Mrs. Rizwana Ali, to the AMU Girls School. Your patronage of our school is valued dearly. Today, all of us have gathered here to celebrate the birth anniversary of the greatest Muslim reformer and statesman of 19th century and the founder of Aligarh Muslim University, Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was born in Delhi on October 17, 1870 and breathed his last on Sunday, 27 March 1898. His family on the maternal and paternal side had close contact with the Mughal court. He retired in 1876 as a judge. In 1875, Sir Syed founded the Madrasatul Uloom in Aligarh and trained at the Muhammadan Anglo-Oriental College after Oxford and Cambridge University. Then he visited on a trip to London in 1869. He aimed at creating a conference of traditional learning and modern sciences. He wanted this college to act as a bridge between the old and the new, the east and the west. The MAO college was raised to the status of university in 1920. Sir Syed was not merely interested in establishing a college at Aligarh, but at spreading a network of Muslim merit education institutions throughout the length and breadth of the country. Keeping this in view, he instructed the All India Muslim Educational Conference in 1886. The Aligarh movement motivated the Muslim and helped to open a number of educational institutions. It was the first of its own kind of Muslim NGO in India, which awake the Muslims from their deep slumber and influenced social and political awareness among them. Aligarh Muslim University known more as a movement than an academic institution. This is one of the most important chapters of Indian history as far as the sociology of Hindu-Muslim relationship is concerned. Here the philosophy of secularism as given by Sir Syed is in practice. In his famous speech which he made in the foundation of MAO College on 18 January 1877, Sir Syed said, "From the seed which we sow today, there may spring up a mighty tree, where branches like those of the banyan of the soil shall in their turn strike from roots into the earth, and themselves send forth new and vigorous siblings." He was only pioneer who recognized the critical role of education for the empowerment of the poor and backward Muslim community. His teachings are very relevant for us in their different times. Today, Muslims
behind in all walk of life. The main reason for this solid status is backwardness in modern education. Only the vision of Sir Syed can help the Muslims come out from the present situation. It is high time that we realize the message of Sir Syed and its pride behind the Aligarh movement. Let us expand and propagate the Aligarh movement for creating a modern society with a scientific outlook. In the end, I would like to quote Maulana Altaf Hussain Hadi, writer of Sir Syed biography, Hayat-e-Javed. There is an old saying that a good friend is like a leafy tree. For when a tree is full of bloom, one has the pleasure of its shade and the enjoyment of its fruit. And when it's within it, what is put in many uses. Sir Syed was a such friend to the Muslims. When he was alive, he labored for them with his body. He worked, he spent and his money. When he died, he left the memory of the love and work imprinted on their hearts, so that they might come together and build a foundation has been given by the Sir Syed Ahmad Khan. As a part of such celebration, the AMU Girls School has organized an inter-school dance competition today. All AMU schools are participating in this competition. Again, I, from the inner heart of the school, welcome you all to this event. Thank you. शुक्रिया मैम। नज़्म ख़्वानी के मुकाबले से पहले पेश है बानी दस का सर सैयद अलैहि इस्लाम की शान में नज़्म नज़र सर सैयद। की तरह
तमाम स्कूल मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 10 साहबान में तशरीफ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं एसटीएस हाई स्कूल के अर्जुल मोइन 10A4 से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आएं और अपनी नज़र पेश करें। शौक से उसने बनाया मकबरा एक शानदार, शौक से उसने बनाया मकबरा एक शानदार, और छोड़ा खाली यादगार। शौक से उसने बनाया दुनिया के पौधे बाग में अपने लगाए, एक ने दुनिया के पौधे बाग में अपने लगाए, एक ने छोड़े पसीने एक बेशुमार। शौक से उसने बनाया एक मुहिब्बे कौम ने अपने मुबारक हाथ से, एक मुहिब्बे कौम ने अपने मुबारक हाथ से कौम की तालीम की बुनियाद डाली। इस तरह शौक से उसने बनाया, दूर से उम्मीद ने जल्दी सी एक दिखलाई है, दूर से उम्मीद ने जल्दी सी एक दिखलाई है। एक कश्ती डूबते बेड़े को नहीं आई है, शौक से उसने बनाया। पाओगे तारीख में हरगिज़ न तुम उसकी मिसाल, पाओगे तारीख में हरगिज़ न तुम उसकी मिसाल। सल्तनत ने कौम की जो मदद फरमाई है, शौक से उसने बनाया। गैर कौमों ने भी की है शर्ते हमदर्दी अदा, गैर कौमों ने भी की है शर्ते हमदर्दी अदा। ये बिना चलती हवा तक को भी दिल से आई है, शौक से उसने बनाया। आओ हम भी हैं अजीजों मुख्तरम समझे से, आओ हम भी हैं अजीजों एक ज़रूरी काम अपना कम से कम समझे से। आओ शौक से उसने बनाया मकबरा एक शानदार, और छोड़ा उसने यादगार, ईमान यादगार। शुक्रिया। और अब एसटीएस हाई स्कूल के अरसल खान 10A4 को मैं दावत देना चाहूँगी। अगर दिल में अगर रखते हैं दिल पहलू में आकर ये चमन देखें, अगर रखते हैं दिल पहलू में आकर ये चमन देखें। तासुफ अगर दिल में रियाज़ कौम की अगर
रखते हैं दिल पहलू में आकर ये चमन देखें। हुए हैं जमा यहाँ जो नौनिहाल इतराफ से आकर, हुए हैं जो यहाँ नौनिहाल इतराफ से आकर वतन पूछे तो हिंदो सिंधु पंजाब दखन देखें। अगर रखते हैं दिल, अगर रखते हैं दिल, मोहब्बत उनमें जब देखे तो देखे भाई ना जाए, मोहब्बत उनमें जब देखे तो देखे भाई ना जाए। वतन पूछे तो हिंदो सिंधु पंजाब दखन देखे। अगर रखते हैं दिल, अगर रखते हैं दिल, सल्फ पर फख्र सल्फ पर फख्र सर्फ पर फख्र सल्फ पर फख्र इस्लाम की दिल में इस चुबन को देखे। लगन इस्लाम की देखे चुबन दिल में कौम की देखे। लगन इस्लाम की अगर रखते हैं दिल पहलू में आकर ये चमन देखें। शुक्रिया। शुक्रिया। और तमाम समाज से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो अपनी नज़्म के साथ उसके शोरा का भी नाम बताएं। और अब मैं ABK हाई स्कूल गर्ल्स की इकरा नाज को दावत देती हूँ कि वहाँ और नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तालीम अगर नहीं है ज़माने की रोशनी था, एक उजाला था, जहालत के अंधेरों से हमें जिसने निकाला था। तरक्की की जो दामन थी वो अंग्रेजी करीब आई, नए अफराक की एक बर्क़ सी ज़हनों में लहराई। जहालत के अंधेरों से हमें जिसने निकाला था, न जाने कितने तारे हो गए रोशन अंधेरों में। शबे तारीक की महरूमियाँ बदली सवेरों में। जहालत के अंधेरों से हमें जिसने निकाला था, नई तहज़ीब रोती है, तरक्कियाँ भरती है। बहादुर इल्म की देव
सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की गजाला और नसीमा से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर अपनी नज़्म पेश करें।
संगे तुरबत है मेरा घर विदाए तकरीर देख, संगे तुरबत है मेरा, संगे तुरबत है मेरा घर विदाए तकरीर देख। चश्मे बातिन से जरा इस लौह की तहरीर देख, चश्मे बातिन से जरा इस लौह की तहरीर देख। है कि तेरा मुरझा तारे नफस में है। शुक्रिया। शुक्रिया। और अब एव्यू सदर स्कूल बॉयज के दानिश आरफ से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी नज़्म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। पेशी खिदमत है अल्लामा इकबाल की नज़म के चंद अशआर समाअत फरमाएं। वाना करना फिर पाबंदी के लिए अपनी ज़बान, वाना करना फिर पाबंदी के लिए अपनी ज़बान। छुप के बैठा है हुआ हंगामा महशर यहाँ, छुप के है बैठा हुआ हंगामा महशर यहाँ। वसल के असबाब पैदा हो तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तकरीर से। महफिलों में पुरानी दास्तानों को न छेड़, रंग पर जो अब न आए उन फसानों को न छेड़। तू अगर कोई मुदाबिर है तो सुन मेरी सदा, है दिलेरी दस्त अरबाबे सयासत का असा। अर्ज़ मतलब से झिझक जाना नहीं ज़ेबा तुझे, नेक है नियत अगर तेरी तो क्या परवाह तुझे। बंदाए मोमिन का दिल की मोहरिया से पाक है, क़ुव्वते फरमार बाके सामने बेबाक है। वान करना फिर पाबंदी के लिए अपनी ज़बान। बचपन सुहाना है परिंदों की तरह मुझको अभी तो चहचहाना है, अभी तो पढ़ने लिखने की समझ है मेरे जीने में। बड़ा होकर मुझे भी तो बड़ा इंसान बनना है, मशीनों कारखानों से मेरा रिश्ता न जोड़ो तुम। मैं एक नाजुक सा शीशा हूँ, ना इस शीशे को तोड़ो तुम। मैं एक नाजुक सा शीशा हूँ, ना इस शीशे को तोड़ो तुम। उजाला इल्म दानिश का मेरी दुनिया में आने दो, मेरी दुनिया में आने दो। मुझे मिनटों तुम जाने दो, मुझे मिनटों तुम जाने दो, मुझे मिनटों तुम जाने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है एव्यू गर्ल्स हाई स्कूल को अपने कमाल दिखाने का, इसलिए मैं ज़किया
अपने फर्ज मनसबी के साथ साथ उनकी थी हालात पर गहरी नजर है। ये सर सैयद का फैजाने नजर जिसने शहर इल्म के खोले हैं दर। लिख के असबाबे बगावत पर किताब कौम के थे चार अगर बाद अज़ क़दर। वो अकेले ही न थे इस राह में उनके रुफ़क़ा भी थे उनके हम सफ़र। वो अकेले ही न थे इस राह में उनके रुफ़क़ा भी थे उनके हम सफ़र है। ये सर सैयद का फैज़ाने नज़र जिसने शहर इल्म के खोले हैं दर। यौम सर सैयद मनाए क्यों न हम उनका है एहसान मुल्को कौम पर। ज़ेबदारी के जहाँ है उनका नाम काम है उनका निहायत मोतबर। ज़ेबदारी के जहाँ है उनका नाम काम है उनका निहायत मोतबर है। ये सर सैयद का फैज़ाने नजर जिसने शहर इल्म के खोले हैं दर। जिसने शहर इल्म के खोले हैं दर। जिसने शहर इल्म के खोले हैं दर। शुक्रिया। और अब गर्ल्स हाई स्कूल के हुमा और तस्नीम फातिमा से दरख्वास्त है कि वो अपनी नज़र पेश करें। अस्सलाम वालेकुम दार
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्लाह इकबाल की नज़्म सेहत विलायत लफ़ज़ पेश करने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है कि तेरा मुरझा तारे नफस में है असीर, है कि तेरा मुरझा तारे नफस में है असीर, है कि तेरा मुरझा तारे नफस में है असीर, है कि तेरी रूह का, है कि तेरी रूह का ताए आसमाने फिक्र इफ्तिखारे कौम मिल्लत रूह सैयद जाने मन, तुझसे कायम है ज़माने में ख़िरद का पाकपन, तेरे फूलों से महकता है मोहब्बत का चमन, तुझसे कायम है ज़माने में ख़िरद का पाकपन, तेरे फूलों से महकता है। अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना, आता है याद मुझको गुज़रा